پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، اور میری اور آپ کی نجات کی کامل امید بن کر بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو عادل اور منصف ہے، آج شب آپ تمام مقدسین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں خداوند کا کہ پھر سے یہ ایک انمول اور خوبصورت موقع میری زندگی میں میسر آیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھنے والا ہو سکوں۔ میں شکر گزار ہوں ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی گئی پرستش اور دعاؤں کے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ اس وقت اس بائبل سٹڈی میں مختلف میڈیاز کے ذریعہ سے شریک ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کے ایمانوں کو خوب مضبوط کرے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، اور یہ باتیں ہم اپنی زندگی پر لاگو کرنے والے بھی ہو سکیں۔ آخری زمانہ میں، اس آخری اور بے دینی کے دور میں، ریاکاری اور مذہبی منافقت کے دور میں، ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب جو اس آخری دور کی اشہد ضرورت ہے اور ہمارے لیے آنے والے وقت کے لیے تیاری کے لیے بہت موزوں اور بہت ضروری ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم مکاشفہ 21 باب میں ہیں۔ گزرے 2 ہفتوں کی سٹڈیز میں ہم پہلی 2 آیات تک پہنچے۔ آج آپ کے ساتھ مل کر میں آیت 3 پر بات کروں گا۔ میں 3-4 اور آگے والی آیات پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ خدا کے کلام کی کسی ایک ہی آیت میں اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ جتنا زیادہ اس گہری کان کو کھودتے چلے جائیں، قیمتی جواہر اور موتی ہمیں میسر آتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس محدود وقت میں مکاشفہ 21 کی 3 آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پس منظر میں مقدس یوحنا پتمس کے جزیرہ میں روح القدس کی تحریک سے جو مناظر دیکھتے ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ ان سب کو لکھ لے، کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضرور اور بہت جلد ہے۔ اب کی بار مقدس یوحنا یوں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نیا آسمان ہے اور ایک نئی زمین ہے۔ نیا آسمان اور نئی زمین، اور پرانی زمین اور پرانا آسمان اب وہ جاتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سمندر بھی نہ رہا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں
कि फिर मैंने शहर मुकद्दस एक नए यरूशलेम को देखा, खुदा के पास से आसमान पर से उतर रहा था, और वो इस कदर सजा हुआ था जैसे दुल्हन अपने दूल्हा के लिए तैयार होती है, सिंगार करती है, जेवरात और मलबूसात से मुलब्बस होती है। इन बातों पर हम गुजरे 2 हफ्तों में गौर कर चुके हैं। आज हम आयत 3 में देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना फिर से यह जुमला दोहराते हैं कि फिर मैंने देखा। 2 बातें आमतौर पर यूहन्ना के तजुर्बा में आती है। एक तो यही कि फिर मैंने ये देखा, और दूसरी बात, और मैंने ये सुना। बारहा बार मुकाशफा की किताब में ये टर्म्स मुस्तअमल है, और वो फरमाते हैं कि फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना। फिर से वो सुना वाली टर्म यहां पर आ रही है कि देख। कौन देखे? यूहन्ना। खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। इस आयत के मुताबिक हम मुकद्दस यूहन्ना को एक और बड़े मंजर से पर्दा उठाते हुए देखते हैं। असल में यूहन्ना तो नहीं, लेकिन जो इन राजो मकाशफात या रमूज से पर्दा कुशाई कर रहा था, वो यूहन्ना को ये सारे मनाजर दिखाता था। लेकिन इस आयत के मुताबिक हम इस सच्चाई को देखते हैं कि वो जो तख्त था ना, जिस पर कोई बैठा हुआ था और जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए, ये पहले वाले, उस तख्त पर से मैंने किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना। और यह भी याद रहे कि मुकद्दस यूहन्ना 1 बार नहीं, 6 बार, 4 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि मैंने एक बुलंद आवाज सुनी। कभी फरिश्ता बुलंद आवाज से कहता है, कौन इस किताब को खोलने वाला है? और कभी तख्त पर से कोई बोलता और कहता है एक खास मैसेज, क्योंकि 21 और 22 अबवाब में हम उस नए यरूशलेम, और वो कैसा होगा, वो नया शहर यरूशलेम, नया आसमान और नई जमीन, और उसमें जो मकीम होंगे उनकी बाबत देखते हैं, जहां कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई अफरा तफरी, कोई वबा, कोई कहत, कोई काल नहीं है। मौत नहीं, कोविड नहीं, कैंसर नहीं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, गुनाह नहीं, रोना नहीं, आंसू नहीं, बल्कि अबदी सुख और चैन है।
क्योंकि जिसकी हजूरी में हम होंगे और जो उस तख्त पर बैठा होगा, उसके यहां अमन, सुकून, इत्मीनान, सुलह के सिवा और कुछ भी नहीं है। और हम उस मुल्क के मुंतजर हैं, उस देश के, उस वतन के मुंतजर हैं जिसका जिक्र बुजुर्ग अब्राहम ने भी किया और मुकद्दस पौलुस ने भी किया है। हम इस धरती पर परदेसी और मुसाफिर हैं, और जो परदेसी और मुसाफिर होते हैं, जहां पर उस वक्त वो होते हैं, वो मकाम और वो जगह उनकी नहीं होती। गुजरे हफ्ते मैंने अपनी जात की बाबत आपको एग्जाम्पल दी थी और आपको याद होगी, वरना आप हमारे इस YouTube चैनल पर अबदी बादशाह पर जाएं और आपको गुजरी बाकी बाइबल स्टडीज मिल पाएंगी जो हमने मकाशफा की, या इस फेसबुक के पेजेस को आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वो बाइबल स्टडी मिल जाएगी। लेकिन जो बुलंद आवाज आती है उसमें एक पैगाम था। बाज आवाजें तो गरज चमक की भी होती है, बादल गरजते हैं। हमें सिर्फ यह पता होता है कि बादल गरजे हैं, बिजली चमकी है और यह बिजली की कड़क है, लेकिन मैसेज क्या है हमें मालूम नहीं। लेकिन इस आयत में यूहन्ना कहते हैं कि वो जो बुलंद आवाज मैंने सुनी, वो एक पैगाम था ऊंची आवाज में, और वो पैगाम ये था कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। और यूं लगता है कि खुदावन मुकद्दस यूहन्ना की तवज्जो को उस खूबसूरत मंजर की तरफ मबजूल करवा रहे थे जिसका जिक्र हुआ है कि खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। बाय द वे, अगर मैं आपसे इतनी अर्ज करूं अभी कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके, थोड़ी देर के लिए, शायद 30 सेकंड्स, और तसव्वुर में यह सोचें कि खुदा का खेमा आदमियों के बीच में, तो वो मंजर कैसा होगा आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। कितना रूहानी, कितना जलाली, जहां पर खुदाए पाक की हजूरी होगी। हम उसको उस तौर पर अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, जब तक कि हम उस मकाम में खुद पहुंच ना जाए। और आप देख रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है कि खुदा का खेमा आदमियों के बीच में, आदमियों के दरमियान है। जब मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करने की बात कर रहा था तो मेरे जहन में एक और बात आ रही थी, और वो ये कि मुझे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बोलने का भी इत्तेफाक हुआ जहां बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे, और
बैनल मजाहिब लोग भी और बहुत खर्चा करने वालों ने खर्चे किए। मेन गेट से एंटर होते हुए बंदा सोचता है कि मैं कौन और मेरी हैसियत क्या कि यहां इन लोगों में और इस मजमा में और इतने खूबसूरत जगह पर मैं बोलूं। शायद आपको भी किसी ऐसी जगह जाने का जरूर इत्तेफाक हुआ होगा कि आपको अपने आप में एहसास हुआ होगा कि मैं कहां और ये मकाम कहां। ये खुदा की निगाहे करम है कि मैं यहां पर पहुंचा या पहुंची हूं। ये तो जनरल बात है जो मैं कर रहा था। ओ, लेकिन खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह की हजूरी, मेरे पास लफ्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस मंजर का आपके सामने इंकिशाफ फिर भी नहीं कर पाऊंगा कि कितना खूबसूरत मंजर होगा। खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। दौरान स्टडी मुझे यूं लगता था कि खुदा का खेमा आदमियों के बीच से मुराद यह है कि खुदा बजाते खुद अब कहीं दूर तीसरे आसमान पर नहीं और पर्दा के पीछे नहीं, बल्कि अब खुदा अपने लोगों के बीच में आकर रहेगा। वो जिन्होंने उसकी तरफ से मुहैया किए गए निजात के इंतजाम को कबूल किया और कुफारा पर, फिदिया पर, इवजी पर, मुनज्जी आलमीन मसीह खुदावंद पर ईमान लाए और अपनी पोशाक की हिफाजत की है। जमाना क्या करता है उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइन अपने खुदावंद के साथ सीधी रखी और इर्द गिर्द भले कोई ढोल पीटता हो, उन्हें इसके बारे में कोई गर्ज नहीं थी। और इस दुनिया के झमेलों में उन्होंने अपने आप को आलूदा नहीं किया। गर्द उठती रही, लेकिन वो अपने आप को जो रास्तबाजी की पोशाक मसीह खुदावंद ने पहनाई, उस रास्तबाजी की पोशाक की हिफाजत करते रहे। उनकी बात करता हूं। वो जो दो दो टकों के एवज बिके नहीं, बल्कि मसीही ईमान और मसीह की शख्सियत के लिए अपनी जान तक बतौर नजराना देना, कुर्बान करना कबूल कर ली, उन लोगों की बात हो रही है। जब मैं बागे अदन की बात करता हूं तो आपको तो ऑलरेडी इस बात के बारे में इल्म है, क्योंकि आप खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं कि खुदा ने इस जमीन पर जो आदम और हवा के लिए मकाम सजाया था, कितना खूबसूरत और कितना पाक माहौल वो था। इतना पाक माहौल, इतना पाक कि खुद खालिक मखलूक के साथ आकर वक्त गुजारता ठंडे वक्तों में।
یہ خدا کا خیمہ آدم اور ہوا کے بیچ میں لگنے کی ایک اہم ترین مثال ہے، لیکن انسان کو خدا کی حضوری اس طور پر راست نہیں آئی جس سبب سے ہم اس مقام پاکیزگی اور خدا کی حضوری سے خارج ہو گئے، نکل گئے۔ اس مقام کو ہم نے گنوا دیا، کھو دیا، محروم ہو گئے۔ بعد میں خدا بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کے بیچ میں آ کر رہنا چاہتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے برس تک موسیٰ کو جیسے خروج 29 باب کی 8 آیت میں بتایا گیا، کیا وہ یہ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ اور وہ مقدس کیسا ہو؟ 25 کی 9، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ اس مسکن کا، اس خیمے کا، جس کو ہم خیمہ اجتماع عارضی طور پر جہاں کہیں دوران سفر مصر سے لے کر کنعان تک اسرائیلیوں کے پڑاؤ پڑتے رہے، وہاں اس عارضی ٹیمپریری ٹینٹ کو وہ لگاتے، خدا کی حضوری وہاں ہوتی اور خدا آگ اور دھوئیں میں اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا۔ خدا کی محبت اور خدا کے پیار کی انتہا یہ کہ اس نے ہر ممکن طریقہ سے کوشش کی ہے کہ اپنا خیمہ آدمیوں کے بیچ میں لگائے۔ اور پھر جب میں 29 باب پڑھتا ہوں، خروج 29 باب، اور اس کی 45 آیت، تو یہاں لکھا ہے، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ واہ! اظہار محبت میں خدا بذات خود یہ کہہ رہا ہے، اس خیمہ کو بناؤ کہ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں سکونت کروں۔ اور آپ جانتے ہیں مابعد جب وہ اس عارضی سفر کے بعد سرزمین موعود یعنی کنعان میں پہنچے، تو پھر کس طرح خدا نے وہی پرانے نمونہ کے مطابق ان کو تحریک دی کہ وہ خدا کے لیے ایک پرماننٹ ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر بنائے، یعنی ہیکل سلیمانی۔ کتنی بار مسمار ہوئی، لیکن ایک بات ضرور ہے، خدا نے جب دیکھا کہ انسان اس ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیکل کو بت بنا کے پوجنا شروع ہو گیا، اور یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوں، ان کے دل کہیں اور ہیں، اور اس عبادت گاہ کو گویا ایک معبود اور ایک الہ بنا بیٹھے ہیں۔ تو پھر خدا یہ کہتا ہے، نو 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 نو، میں ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھروں میں سکونت نہیں کرتا، تم رانگ ہو، تم غلط ہو۔
हाथों से बनाए हुए घरों में नहीं। और मेरे अजीजों, मैं इस बात का कायल हूं कि चर्च बिल्डिंग्स का तकद्दस बरकरार रखना चाहिए हर मुमकिन तरीके से, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि चर्च बिल्डिंग को हम इतनी प्रायोरिटी दें कि जिसको मिलनी चाहिए उसको उतनी प्रायोरिटी और अवलियत ना मिले और उस बिल्डिंग को उतनी प्रायोरिटी मिले। नो, खुदा ये नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में और अपनी जिंदगी में, हर काम में, हर फेल में, हर शोभा में अव्वल दर्जा देने वाले हों। खैमा इज्तिमा और हैकल इस बात की दलील थी कि ये मेरा अपने लोगों के बीच में होना किसी बड़ी हजूरी की पेशबीनी है। In advance, God was showing something to them that what is going to happen in future. और उसके बाद जब इंसान ना अपनी तकद्दस और पाकीज़गी को कायम रख सका, ना शरीयत पर पूरा उतर पाया, ना खुदा के तकद्दस को बरकरार रख पाया, रस्म और रवाज में उलझ कर रह गया, तो फिर भी खुदा की मोहब्बत यूं जुम्बश में आती है कि वो अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ जाता है। खुदा अपने लोगों के बीच में आ जाता है। काश के हम इस भेद को समझें और गैर मसीही लोग भी काश के इस भेद को समझें। मालिक खुद इस धरती पर आ जाता है और उसकी हजूरी का हमने उस तौर पर एहसास नहीं किया जैसे करना चाहिए था। लेकिन वही वाहिद द फाइनल खुदा की तरफ से गुनहगार इंसान के लिए इंतजाम था और है, ताकि उसी दरवाजा से दाखिल होकर हम खुदा की पाकीज़गी, खुदा की रास्तबाजी को अपने ऊपर ले सके। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, कोई शरनी शुक्राना नहीं। यही वो वाहिद जरिया है। ना हमारे डॉलर, ना हमारे पैसे, ना चर्च को जरूरत है, ना खुदावंद को जरूरत है। खुदा हमारा दिल मांगता है और वो कहता है, अपने नीले पीले नोट अपने पास रखो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जंगल के दरख्त और चौपाए मेरे हैं, तुम मुझे क्या दोगे भाई? सौदा नहीं करना खुदा के साथ। वो हमारी जिंदगी और हमारा दिल मांगता है। और अब मसीह यीशु जब सुना के शहजादे आ गए, निजात का इंतजाम हो गया, अर्श वाला फर्श पर आ गया, तो उसके बाद अब खुदा एक और प्लान और एक और मंसूबा जो इस फाइनल निजात के इंतजाम की अगली कड़ी है वो कर चुका है। इसके अलावा कोई और इंतजाम नहीं। और इस आयत में जो मकाशफा 21:3 में है, ये वो फाइनल और हतमी सच्चाई और रेवलेशन है, मकाशफा है
कि खुदा बजाते खुद आदमियों के दरमियान सकूनत करता है। खुदा की हुजूरी उस नए आसमान और उस नई जमीन और उस नए यरूशलेम में, जहां पर खुदा के लोग होंगे और खुदा अपने लोगों के बीच में होगा। और यहां ये आयत अभी खत्म नहीं हुई, खत्म से मुराद अभी मुकम्मल नहीं हुई स्टडी के दौरान। और वो उनके साथ सकूनत करेगा। खुदा आदमियों के साथ सकूनत करेगा, रहेगा। छुट्टी आएगा क्या? नो, वो अपने लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतने तवील अरसा तक वो अपने लोगों के बीच में रहेगा। और फिर वो उसके लोग होंगे, ऑलरेडी हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, यही वो लोग हैं जो खुदा के होंगे, जिन्होंने अपने दामन को बचाया, जान तक दे देने से गुरेज नहीं किया इंजील की खातिर। आजकल ये बातें बहुत कम सुनने में मिलती है। तो आई बड़ी है, रोला बड़ा है, लेकिन मसीह खुदावंद की खातिर इस इंजील के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जानू के नजराने देने वाले लोग आज ढूंढे नहीं मिलते। सदाकत है और हकीकत है। और फिर लिखा है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनका खुदा होगा। That's all। यानी खुदा और उसके लोग इकट्ठे रहेंगे और वो इकट्ठे मिलकर खुदाबंद की हजूरी में सकूनत करेंगे। और फिर वो माहौल कैसा होगा? ईमानदारों के साथ क्या सलूक होगा? खुदा क्या करेगा? खुदा उनकी किस तौर पर खुशियों से दामन भरेगा? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं। अगर खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम, अगले हफ्ते नहीं, क्योंकि मैं किसी मिशन ट्रिप पर हूंगा, लेकिन उसके बाद खुदावन ने चाहा तो हम मिलकर गौर करेंगे कि खुदा किस तौर पर अपने लोगों को संभालता, मदद करता, रहनुमाई करता और अपने जलाल के लिए खर्च करता है। अजीजों, हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी और शुक्रगुजारी के तौर पर झुकाएं। और अगर आप में से कोई ऐसा है या ऐसी है कि अभी तक आपने खुदा की तरफ से नजात के इंतजाम को कबूल नहीं किया, मजहब को कबूल किया, फिरकों को कबूल किया, इबादत गाहों को कबूल किया, लीडर्स को कबूल किया, लेकिन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आप अभी तक अंधेरे में हैं और खोए हुए हैं। इब्ने आदम इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें निजात बख्शे। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू ही है जिसने अभी तक अपना दिल खुदावंद के स्पुर्द नहीं किया,
शायद ये एक आखिरी कॉल और एक फाइनल अलार्म आपके लिए हो कि आप अपना जीवन खुदावन के नाम कर दें। अगर आप ही है तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं हैरान होता हूं, बेशुमार प्रेयर रिक्वेस्ट्स आती हैं, बेशुमार व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और इवन फेसबुक के कई पेजेस पर भी। इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं प्रेयर रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, शायद ही कोई ये कहे ओ जी मैं अपना दिल खुदावन यीशु मसीह को देना चाहता हूं, नई पैदाइश पाना चाहता हूं, मेरे लिए दुआ करें। शायद ही कोई हो। जिसम लूला लंगड़ाई हो ना ते कोई गल नहीं, रूह लूली लंगड़ी नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह पर ईमान लाकर अबदी हयात के वारिस हो जाए। हम दुआ करें। आसमानी पिता, ममनून है आपके कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए जो आज पाक रूह के वसीला से हमने सुनी है। फजल बख्शिए कि इन बातों को हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं। और बिलखसूस मैं मुल्तजी हूं अपने उन अजीज भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने आज अपना आप आपके सुपुर्द करने का इरादा किया है। अगर कोई है, खुदावन उनकी जिंदगी में गहरा और अमीक काम कीजिए। वो आपकी तरफ रुजू लाएं, आपकी तरफ लौट आए और खुदावन दर हकीकत आप उनको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाएं। और वो जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ प्रेयर रिक्वेस्ट्स पोस्ट की है, मिन्नत करता हूं खुदावन अपने लोगों की जिंदगी में एक ऐसा मोजज़ा करें कि ये मोजज़ा उनकी जिंदगी में एक गवाही बन जाए, ये ट्रेजेडी टेस्टिमनी बन जाए और आपका बुजुर्ग नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक, जलाली, खूबसूरत और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।